प्यार का तोहफा लाए हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। ये कैसी अजब दास्तां हो रही है, छिपाते छिपाते बयां हो रही है। तो पहले प्लेबैक सिंगर कौन थे? खेल सिंगर कौन थे? जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे, हम जी कर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। फिर उसके बाद है ना तुम्हारा, अरे बेकरार करके हमें यूं न चाहिए, आपको हमारी कसम ताली बजाइए। अरे रात में चांद ने फिर कहा, सुन जा दिल की दास्तां। तो पहले प्लेबैक सिंगर केएल सहगल, ये पुराने जमानों का इस तरह प्रस्तुतिकरण था म्यूजिक में, संगीत में। यानी पुराना संगीत और आज का संगीत कैसे रिकॉर्ड होता है, ये बताने के लिए हमारे पास प्रोफेसर प्लेबैक सिंगर है विशाल जी को बुलाना चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां। यस विशाल, Thank you so much, sir. Hello, everyone. कैसे हो sir? Okay, everyone is looking very fresh. By the way, myself Vishal, I'm working as the audio engineer for this particular recording studio. And what should I tell you about the music here? I guess everyone knows and everyone loves music a lot, right? किसको किसको music पसंद है? Please put your hand. Okay, if you love music, right? Ah, yes. Okay, great. Basically, this is the technical floor. मैं English और हिंदी दोनों combine करके बात करूँगा, so that मेहमानों को भी कुछ समझ में आए और आप सबको भी समझ में आए, right? Okay, let's start with these legends. For all old songs, we used to record with a technique called analog recording technique. Basically, after every hardware and mixer, we were using reels and magnetic head, like pen and paper. So we write with the pen on paper. This is how we were scratching everything, every frequency we are creating in the recording room by using magnetic head on reel. We were scratching it, right? And this is how we were recording old songs, basically. Simplified way I'm telling you, I'm explaining you. So पुराने गाने जब हम रिकॉर्ड करते थे एनालॉग रिकॉर्डिंग टेक्निक के अंदर, एक रील और मैग्नेटिक हेड जैसे पेन पेपर होता है वैसे हम यूज करते थे। जो भी आप प्ले कर रहे हो लाइव, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा या बैंड होता था, म्यूजिशियंस होते थे सब, उसके अंदर सारे जितने भी सेक्शन है, ब्रास, वुड बेस, जितने भी आपके सेक्शन रहे सारे आप लाइव प्ले करते, सारी चीजें स्क्रैच में रिकॉर्ड होती थी रील के ऊपर। और डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्ट्रीब्यूशन यू आर गेटिंग रील्स in delicate, those were delicate baby. In hard cases you call it a cassette, right? So many cassettes I guess you are used already in tape. So cassette के अंदर जब वो reel निकलती थी तब हम क्या करते थे, उंगली से नहीं तो पेन से उसको फिक्स करते थे, right? So everyone knows about the cassette tapes and that era basically. So analog recording technique के साथ वो निकलता था। उसके पहले और पीछे अगर जाओगे तो we were using gramophone. डिस्क रहती थी वहाँ पे, थ्रू नीडल एवरीथिंग व्हाटएवर द डेटा is like recorded on that disk. We used to listen all those data from the horn and transfer होता था needle से. Okay, so have you heard about Grammy Award? Yes. So Grammy Award का जो नाम है और डिजाइन है वो लिया गया है ग्रामोफोन से। Up to 2000 particularly in India what happened is like ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वालिटी बढ़ी, सॉन्ग की भी क्वालिटी अच्छी से आने लगी। After 2000 we started recording all these songs with the softwares, DAW, digital audio workstation. And nowadays we are making any song, Hollywood, Bollywood, Tollywood फर्क नहीं गिरता है। 70-80% of the song we are programming completely, and 20-30% of the song is naturally recorded song. Okay, so in old days for AC/DC band or initial phase of MJ, if you go and check, everything was original, literally. Okay, so advanced processing and softwares were not there. These people are literally recording everything, play करना पड़ता था, सब कुछ record करना पड़ता था, original था, right? And distribution हो रहा है digital अभी, you don't need to buy any CD, DVD, cassette, nothing. You are just going, searching the song, listening to it, and that is it. So I'm coming to a fact, आप बोलते हैं पुराने गाने सुनने में जो मजा आता है वो नए सॉन्ग में नहीं। हालांकि नए गाने क्लियर है, पुराने गाने उतने क्लियर नहीं, फिर भी आप ऐसे बोलते हो। Old songs are having different magic, that's what you say. Actually, old songs are not that clear compared to new songs. New songs are crystal clear, for me at least, right? Still you say is that old songs are having different magic, evergreen. Why? ऐसा क्यों बोलते हो आप? Why you say this? You know that, that's why I'm asking you. You can participate now. लिरिकली उतने थोड़ा original, everything was original, sir. You were not having software, so you have to play everything. Whatever you want to listen, lyrically practice it and play and record and then listen, right? So that was the process. As like okay, so basically there is huge difference between lyrics old and new. Yeah.
लिरिक्स के मामले में बहुत अफरा तफरी मच गई अभी तो, मतलब बेबी को बेस पसंद है, कोका कोला तो कुछ भी लिखता है अभी 3 ही महीना चलता है वो सॉन्ग, उसके बाद में चलता भी नहीं। लेकिन पहले जमाने में ऐसे नहीं था, डांस वाले सॉन्ग भी अच्छे अच्छे से लिखे जाते थे, उसके भी अंदर एक स्टोरी होती थी। The logical and scientific reason behind this is like if you are having iPhone, it get connects to any Apple product quickly, क्योंकि Apple products ecosystem, right? Ecosystem होता है Apple product का, वैसे हमारा human का भी एक ecosystem है, और our ecosystem is nature. So if you are drinking, watching, eating, fragrance, even anything, even makeup, any equipment, if it is made up of natural process or if it is intact available in the nature, आपकी body इसको accept करती है and grow करती है, relax feel करती है, you don't get tired while consuming it, right? लेकिन लॉन्ग ड्राइव के टाइम पे अगर नए गाने सुनोगे with new song, what happened is like your mind actually processes this new song up to the level of natural songs and then you are enjoying this stuff. So in this process you are getting tired. That is why while long drive try to listen to old songs so that you won't get tired और आपको बहुत अच्छा लगेगा, right? इसलिए पुराने गाने ज्यादा सुनने की कोशिश करनी चाहिए, वो नेचुरल तरीके से बने, राइट? और आप भी नेचर का पार्ट हो तो आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, टू गेट कनेक्ट टू इट वेरी क्विकली। दैट इज वाई मेरे लिए ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड डेटा और ओल्ड कल्चर बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो बहुत कुछ चीजें सिखा सकता है जो फैंसी यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा पाएगी, आई गेस, राइट? सो नाउ इनफ ऑफ इन्फॉर्मेशन, नाउ आई वुड लाइक टू टेक समवन आउट ऑफ यू, बाथरूम सिंगर, प्लेबैक सिंगर, वेलकम, आ जाओ सर। बाथरूम सिंगर बोलते हाथ ऊपर आ गया सर का, लेकिन सर आप अच्छा गाते होगे मुझे पता है, और सबको हम सर को हम विद इन अ मिनट जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग में करूंगा, आप सबको स्ट्रीम करूंगा, उनको स्ट्रीम करूंगा यहाँ पे आप सबके लिए। सो आफ्टर दिस शो इफ एनीवन आउट ऑफ यू, आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो कोई भी गाना गाने के लिए, पुराना नया किसी भी लैंग्वेज के अंदर का, सर आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाना, सर आपको गाइड करते हैं। तो होता ये है कि आपको रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ पे कराओके ट्रैक यूज करेंगे, क्योंकि नया गाना मैं 1 मिनट के अंदर नहीं बना सकता, और मैं आपको यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो इस शो के बाद में मुझे कांटेक्ट करिएगा, लेकिन इस शो के बाद में हम आपको 1 मिनट नहीं पूरा एक अंतरे तक कम से कम गवाते, सो दैट आपको भी लगे मैंने गाना गाया है। इसके चार्जेस भी हैं 350 रुपीज। इफ यू रियली इंटरेस्टेड आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, फैसिलिटी इंटरेस्टेड लोगों के लिए अवेलेबल है। सो राइट नाउ आई एम गोना गो इनसाइड एंड रिकॉर्डिंग। सो आर यू गाइस रेडी? रेडी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Okay, I hope I'm audible outside. Thumbs up everyone. Okay, so track ready है, sir भी ready। आउटसाइड एवरीवन प्लीज क्लैप फॉर हिम, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने गाना गाया। थैंक यू।
केमिकल गैस समाप्त होता है. Yes.